Hi guys, welcome to Afcat to 2020 Current Affairs Part 5. Make sure that you go through Part 1 to Part 4. I will be linking it down in the description box. It holds the very important current affairs, same as this particular video does. Also letting you know that there is this Insight SSB app which you can download, and it is very specific to defense examination. All the courses in this are just related to defense exams, and you need to do nothing less and nothing more than what is provided on this app for the particular examination that you're preparing for. You can also go for these current affair modules that is available for your IFCAT exam. Also, out of you who are preparing for CDS exam, very less time is left, and we know how hard the GS area is. If the same is the case with you, in case you have not been studying hard for your CDS GS area, I will suggest you that this is not the time when you'll be picking up the books and reading those bulky books. Be smart in your studies. Go for this particular course as it is very specific to what comes into the TDS examination, right? So in case you want to score nice and clear the cutoff, it is high time that you should go for this particular course. It covers just the important areas, and more importantly, what you'll find here is that you'll have test series which is extremely relevant to your serious exam. You'll be giving approximately 6 to 7 full-length tests along with the live discussion sessions in the very same course. Please make sure that if you are preparing for the same exam, go right now. You don't have more time left than now. Moving to the question areas, 107th edition of Indian Science Congress was held in which city? This tends to be important question because Indian Science Congress is usually asked in defense exams. This is equally important for both IFCAT as well as CDS. So it was held in Bengaluru. Also remembering which place was it held, which university it was. So it is University of Agricultural Sciences. This is the place where this Congress was held. Talking about the theme for the same was Science and Technology for Rural Development. ठीक है, इसकी थीम क्या रही है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट. अब 107th का हमें पता है, 106 कहाँ पे हुई थी? 106th एडिशन जो था वो जालंधर पंजाब में हुआ था. कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. तो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस कहाँ पर हुई थी? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट वाज हेल्ड इन इंडिया दिस टाइम. ओके, सो 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल Congress was held in between 2 to 8th March. The location for the same has been Delhi, India. Now coming to the theme. Theme क्या रही है? Geoscience, the basic science for sustainable future. ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि what was the theme of 36th International Geological Congress. So you must have an idea what was the theme for the same. Also you need to remember one more thing कि ये equally important CDS के लिए भी हैं. ठीक है, ये वाले जो questions मैं इस particular video में डालूंगी, ये FCAT और CDS दोनों के लिए equally important है. तो please, if you are also studying for CDS, make sure that you go through this. Only difference will come is that is कि दोनों, जैसे अगर FCAT पूछेगा तो वो सिंगल पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि कहाँ पर हुई थी. ठीक है, या फिर ये पूछ लेगा कि थीम क्या थी. लेकिन सीडीएस में क्या आ जाएगा? दोनों चीजें आ जाएंगी एक ही क्वेश्चन के अंदर. तो उसमें थोड़ा इलेबोरेट फॉर्म में आ जाएगा. तो इसलिए मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेजर जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं. Next question is, World Health Organization has designated year 2020 as. तो जो 2020 year है उसको जो designate किया है World Health Organization ने, वो किया है Year of Nurse and Midwives. Okay, so 2020, you know that we have been dealing with the pandemic कोरोना, right? So इसलिए जो World Health Organization है ये थोड़ा important हो जाता है. ठीक है, World Health Organization का आपको मुझे बताने हैं कि headquarters जो हैं वो कहाँ पर है. ठीक है, you will let me know that in the comment section. Moving on to the next question. First country to ban sunscreen that is harmful for corals and sea life. So there is one country, आप इसे sunscreen भी बोलते होंगे, it's actually known as sunscreen. ठीक है, तो जो sunscreen जिस country ने ban की है वो है पलाऊ. अब एक बात ध्यान रखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है. ये हो जाता है इंपॉर्टेंट सीडीएस के लिए. तो देखो, ये जो आपका दिस इज पैसिफिक ओशन. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में कहीं इस लोकेशन पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया से ऊपर चल के एंड अपना एशिया के साइड में है ना, दिस इज द एरिया जहां पर है.
उसके बाद इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लीज रिमेंबर इट्स कैपिटल एज वेल एज इट्स करेंसी, ठीक है। तो नेग्रिल मुड जो है दैट इज इट्स कैपिटल, ठीक है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही फॉलो करती है ये पर्टिकुलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज General Qasim Soleimani of which country has been killed in a US drone strike? तो अगर हम कासिम सुलेमानी की बात करते हैं तो यूएस ड्रोन स्ट्राइक की वजह से ही डाइड, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ही बिलोंग्स टू ईरान। आपको पता है देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इश्यूज इन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईरान, ठीक है। तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, इस वजह से इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड जनरल कासिम सुलेमानी ये कहाँ के हैं? ही इज फ्रॉम ईरान। Who has been awarded the Franklin Award 2020 for her book named The Yield? So when I talk about The Yield, तो this particular book ये भी important हो जाती है कि किसने लिखी है, okay? तो किसने लिखी है? तारा जून है, तो इन्होंने ये लिखी है बुक। ऑल्सो दे कैन आस्क कि फ्रैंकलिन अवार्ड 2020 किसने मिला है, तो दैट इज तारा जून। Next is who is the author of Shuttling to the Top, the story of PV Sindhu. Now, any person who is related to sports, the question related to these kind of people get important. ठीक है? And PV Sindhu, तो she is very famous for her badminton skills. तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आना काफी ज्यादा मतलब देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ये आ जाए। तो वी कृष्ण स्वामी जो हैं उन्होंने ये पर्टिकुलर बुक लिखी है जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2020? तो अर्थ डे 2020 इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इस बार? बिकॉज इट इज द 50th एनिवर्सरी, ठीक है। किसी भी चीज की अगर कुछ एनिवर्सरी होती है, जैसे 100th टाइम है या 50th है, 150th टाइम है, तो एनीथिंग लाइक दिस गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट, ओके। तो थीम क्या रही है अर्थ डे 2020 की? इट इज क्लाइमेट एक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस। और इसकी डेट भी याद रखेंगे कि कब किया जाता है, व्हेन इज अर्थ डे 2020, व्हेन वाज इट सेलिब्रेटेड? तो इट वाज celebrated on April 22, 2020, please remember this. Next is which yojana has been released by Prime Minister on the occasion of Panchayati Raj Divas 2020? तो पंचायती राज दिवस पे एक स्कीम जो है वो रिलीज की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसका नाम है स्वमित्व स्कीम, ठीक है। अब इस स्कीम के साथ साथ इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज्य ऐप, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। पंचायती राज दिवस वाले दिन ये दोनों चीजें लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक celebrated from 24th to 30th April? अब again because of the pandemic, the anything that is related to medication or WHO, ठीक है, immunization, तो ये सब चीजें important हो जाती हैं। So इसकी जो theme रही है that is vaccines work for all, okay? So ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस थीम को दिया है, दैट इज वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, ठीक है। वर्क जो आपकी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो थी वो कब से कब सेलिब्रेट की गई थी? 24 to 30th April. Name the Padma Shri awardee freedom fighter who passed away recently. Now you need to remember one thing कि पद्मश्री अवॉर्डी जो आपके पुराने भी हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आते कौन से हैं यूजुअली? who either died recently, है ना, something related to what happened recently, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पुराने भी। तो अभी she recently died, तो what they can ask out of all of these who has been awarded Padma Shri award, okay, and they can give you these 4 options, उनमें इनका एक नाम होगा तो you can easily tick। तो उनका नाम क्या है? गांधीयन हेमा भारली, ठीक है। तो ये जो है she had been a freedom fighter और इसी रीजन की वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी अवार्ड दिया गया था। Next question is who has been awarded with first Gulbenkian Humanity Award? So there is this very young lady named as Greta Thunberg, ठीक है। She is actually a climate activist. She is very concerned about any environmental related issues, and she's the first one who has got this particular humanity award. Her name is Greta Thunberg. Very important, please remember it. आपको एक चीज बतानी है मुझे कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है। Please answer that in the comment section.
नेक्स्ट इज ट्रेन्स टू गेट माइग्रेंट वर्कर्स बैक होम। इन ट्रेन्स को क्या बोला गया था? तो दीज वर नोन एज श्रमिक ट्रेन्स। तो जैसे ही अपना लॉकडाउन लिफ्ट किया गया था एंड देयर वर लॉट ऑफ माइग्रेंट्स हु वर स्ट्रक, राइट, तो उनको वापस लाया गया था उनकी लोकेशंस पे या उनके स्टेट्स में जहाँ के वो हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, देयर वर दीज ट्रेन्स नेम्ड एज श्रमिक ट्रेन्स, जिसमें इनको वापस इनकी जगह पर या फिर इनकी लोकेशन पे पहुंचाया गया था। Next is who has been elected as Prime Minister of Israel for the 5th time? तो 5th time किसी को elect किया गया है as Prime Minister। तो 5वीं बार बने हैं important हो जाता है, और more importantly Prime Ministers के नाम पूछता है FCAT, okay? तो FCAT में कैसे question आते हैं कि okay, who is the Prime Minister of Israel, और इसमें से 4 आपको option दे देंगे, तो आपको एक mark करना है। तो वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, he is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, और वो 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। साई इंग विन स्वॉर्न एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो साई इंग विन जो हैं वो किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है? इट इज ताइवान। अभी ताइवान में भी रिसेंटली काफी इश्यूज रहे हैं चाइना की वजह से, है ना। चाइना जो है इट ट्राइज ऑलवेज टू पुट अ होल्ड ओवर हांगकांग एंड ताइवान। तो दिस इज ऑल डिस्प्यूटेड काइंड ऑफ एरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। Next question is Ashley Cooper, who died recently, was tennis player and 8 times Grand Slam award winner. ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे? तो जो एशले कूपर हैं, अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है? दे कैन आस्क कि एशले कूपर जो हैं, ही इज वेरी रिनाउंड पर्सन, टू विच स्पोर्ट्स ही बिलोंग? तो आपको पता होगा कि ही बिलोंग टू टेनिस। एंड सेकेंड थिंग दैट दे कैन आस्क इज कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो ही इज रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। सो प्लीज रिमेंबर दिस, एशले कूपर is related to which sports? He's related to tennis and is related to which country? It is Australia, because he has achieved 8 times this particular Grand Slam title. तो ये बहुत important question हो जाता है। Next is who became top earning women athlete in the world? पूरे world के अंदर she is the top earning women athlete, और ये किस sport से related है ये भी बताना है। तो इनका नाम है नाओमी ओसाका, ये टेनिस से रिलेटेड है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? शी इज फ्रॉम जापान, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। हु इज द ओनली क्रिकेटर एंड ओनली इंडियन हु इज इन फोर्ब्स top 100 highest paid athletes? Now this question becomes very important. I cannot stress upon this more than this कि इस ये question आने के काफी high chances हैं, क्योंकि he is the only Indian who has been in this particular magazine, Forbes top 100 highest paid athletes. तो प्लीज इसे याद रखें, ही इज विराट कोहली। इंडिया की तरफ से और क्रिकेट जो साइड है उसकी तरफ से भी, ही इज द ओनली पर्सन who is in the top 100 highest paid athletes. Please remember this. Next is, which nation has officially terminated its membership from WHO? WHO stands for World Health Organization. मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि इसके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशन है जिसने अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी है? तो इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ चाइना रिलेटेड इश्यूज थे, इस रीजन की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने आप को इससे बाहर निकाल लिया। तो इट इज नो मोर एसोसिएटेड विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम राइफल्स हैज कंस्ट्रक्टेड वॉर मेमोरियल नेम्ड वीर समृति इन मोकोंगचुंग। इट इज प्रेजेंट एट विच स्टेट? अब देखो ये क्वेश्चन आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके आने की भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड चीज है। तो ये नागालैंड के अंदर एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जिसका नाम क्या है? वीर समृति। प्लीज इसे याद रखना, ठीक है। कहाँ पर है? नागालैंड के अंदर है। किसने बनाया है? असम राइफल्स ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजिता चानू जो है जिनको इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो she is actually related to weight lifting. Next question is Amazonia 1 satellite जो कि ब्राजील की है, ठीक है। ये कौन सी सैटेलाइट है? इट इज एक्चुअली अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये लॉन्च की जाएगी किस ऑर्गेनाइजेशन से? तो एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज अपनी खुद की कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करेगी ये पर्टिकुलर
जो सैटेलाइट है जिसका नाम है Amazonia-1, तो उसको उस सैटेलाइट को जो लॉन्च करेगी दैट विल बी आवर ओन organization. So this gets a little important. Next is name the ship under Mission Sagar. तो मिशन सागर एक मिशन था जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. ठीक है, ये इंडियन नेवी का एक मिशन था. ठीक है, कहां पर? इंडियन ओशन रीजन के अंदर था, IOR जिसे हम बोलते हैं. तो इस जगह पर था. तो कौन सी शिप रिलेटेड थी इससे? INS केसरी जो है वो गई थी इसके लिए. अब हमें बात करनी है कि ये जो मिशन सागर था किस चीज से रिलेटेड था. तो एक्चुअली एक्सेप्ट फॉर श्रीलंका, जितने अपने यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो अपने इंडिया के जितने पैसिफिक वाली साइड में आते हैं, तो अब हमारे जो श्रीलंका को छोड़ के जितने भी कंट्रीज आती हैं जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कमरोज, सिचलस, ठीक है, तो ये जितनी भी हैं यहाँ पर ये गई थी शिप. ठीक है, किस लिए गई थी? फूड आइटम्स देने के लिए और मेडिकल असिस्टेंस के लिए. ठीक है, श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, तो INS केसरी. ठीक है, कौन सा था मिशन? मिशन सागर. और किसका था? इंडियन नेवी का. ऐसे पूछ सकते हैं कि मिशन सागर किससे रिलेटेड है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या नन ऑफ द अबव. तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? जो ये मिशन सागर है ये किससे रिलेटेड है? इंडियन नेवी से रिलेटेड है. इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, अगेन सीरियस एज वेल एज FCAT. What is the theme of Indian Global Week 2020? तो जो थीम है इंडियन ग्लोबल वीक 2020 का, it is Be the Revival, India and a Better New World. Next है SpaceX Falcon 9 launched military satellite ANASIS-2. Army, जो ANASIS-2 की फुल फॉर्म है that is Army Navy Air Force Satellite Information System. और जो ये सैटेलाइट है ये इनकी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है. तो ये कौन सी कंट्री है जिसकी फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है? तो इट इज साउथ कोरिया. So with this, we end the part 5 of the same series. Now I will be uploading the videos on the regular basis. ठीक है, 25th तक मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ऐड कर दूं. एंड यू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू इट एटलीस्ट 2 to 3 times ताकि आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and share it amongst your friends. Also make sure in case you have not subscribed, please subscribe the channel.